بات میں آپ سے کہوں، لوگوں کے خوف کا اندازہ تو کرو، کاغذ پہ نام محمد لکھو تو اتنا خوف ہے لوگوں کو، اگر اپنے دل پہ لکھ لو گے تو پھر انداز کیا ہوگا، انقلاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ کاغذ پہ لکھا ہوا نام پھاڑا جا سکتا ہے لیکن سینوں پہ لکھا ہوا نام نہیں پھاڑا جا سکتا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بھائی مداح رسول دلبر شاہی صاحب سے نعت شریف منقبت سماعت کی، اور ان سے پیشتر خطیب ہندوستان حضرت مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ سے بھی آپ نے ان کا خطاب، اور بھی بزرگوں سے میں سب کے نام نہیں جانتا، آپ نے سب سے مجھ سے پیشتر جو ہمارے علماء مفکرین شعراء، آپ نے ان سب کے ملفوظات کو، نعتوں کو، مناقب کو سب کو سماعت کر لیا ہے، اور اب رات کا آخری پہر ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ عنوان کتنا خوبصورت آپ نے رکھا ہے، عنوان ہے رسول اعظم کی حرمت اور ان کی ناموس کا تحفظ، یعنی عزت رسول کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت۔ آپ کو کیا پتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت، حضور سے پیار کرنا، حضور سے عشق کرنا انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز انسان کو اتنی بلندی پر نہیں لے جا سکتی جتنا بلندی پر عشق رسول لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا بعض جگہ جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں اس سے آگے عاشقان رسول کی پرواز ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا تھا یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اللہ اکبر، عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں آخر کیا کروں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو انہوں نے فرمایا تھا مولائے روم فرماتے ہیں عاشق رسول بن جاؤ تم سب کچھ بن جاؤ گے، اس لیے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے سینے میں کبھی گناہ کی محبت جنم نہیں لے سکتی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ مسجدوں کو کبھی ویران نہیں کر سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھا سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے اللہ اکبر اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ویسا عشق رسول نہیں ہے جیسا عشق رسول صحابہ کرام کے پاس تھا، جیسا عشق رسول اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ میرے بھائیوں، آج یہاں
जहां पर हजारों की तादाद में नौजवान भाई भी मौजूद हैं और नौजवान बहनें भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इकबाल ने रोना रोया था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। अल्लाह अकबर। वो मताए इश्क कहां चली गई, वो मोहब्बत रसूल कहां चली गई जो मुसलमानों के सीने में थी। मैं बड़ी माजरत के साथ, हजारों का ये मजमा है जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रात के आखिरी पहर में भी ऐसे बैठे हैं जैसे और जगह के लोग मगरिब के बाद बैठते हैं। इतनी रात गुजरने के बाद भी आप सबके जज्बे को सलाम है। आप नींद कुर्बान करके यहां बैठे हैं, आप आराम कुर्बान करके यहां बैठे हैं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह अकबर। आज हमारे पास इश्क रसूल सिर्फ जबानी दावों की हैसियत से है, इश्क रसूल सिर्फ नारों की हैसियत से है, इश्क रसूल सिर्फ कागज पर नामे मोहम्मद लिखने की हैसियत से है। ऐ काश ये नारे अगर अमल के मैदान में तब्दील हो जाएं तो कितना बड़ा इंकलाब आएगा। एक बात मैं आपसे कहूं, लोगों के खौफ का अंदाजा तो करो। कागज पे नामे मोहम्मद लिखो तो इतना खौफ है लोगों को, अगर अपने दिल पे लिख लोगे तो फिर अंदाज क्या होगा, इनकलाब की कैफियत क्या होगी। कागज पे लिखा हुआ नाम फाड़ा जा सकता है, लेकिन सीनों पे लिखा हुआ नाम नहीं फाड़ा जा सकता। आपसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कागज पे ना लिखो, लेकिन एक बात कहता हूं, कागज से ज्यादा कीमती मोमिनों के दिल है। इस दिल पे नामे मोहम्मद क्यों नहीं लिख लेते। अब मैं एक बात आगे बढ़ाऊं, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं लंबी गुफ्तगू आज मैंने नहीं करना, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करना है। जरा तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों, जिस कागज पर नबी का नाम लिखा है उस कागज पर क्या आप किसी हीरो का फोटो चिपका सकते हो? चिपकाओ, चिपका सकते हो? बताओ, चिपका सकते हो? कितने लोग चिपका सकते हैं? हाथ उठाए, चिपका सकते हैं। और जो नहीं चिपका सकते वो हाथ उठा के बताए चिपका सकते। सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए, कागज पर अगर नामे मोहम्मद लिखा हो तो वहां पर उसके साथ हीरो का फोटो नहीं चिपका सकते। तो अगर दिल पर नामे मोहम्मद लिखा हो, क्या बात है, तो फिर गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? गंदी पिक्चरें रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? रसूलुल्लाह का कलेमा भी पढ़ते हो, सीने के अंदर नबी का नाम भी रखते हो और गंदी फिल्में भी देखते हो। मेरी कौम के जवानों, अब मैं आपसे पूछता हूं और आपसे मैं पूछने लगा हूं, अल्लाह अकबर, अगर रसूलुल्लाह का नाम कहीं लिखा हो और अगर कोई फाड़ दे तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपको, हम तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहता हूं, अरे नादान मुसलमान, जिस दिल पर नामे मोहम्मद तूने लिखा है, अब उस दिल के अंदर तू नशे की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू पिक्चर की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू फिल्मों की मोहब्बत लेकर बैठा है, तो बताओ इससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ, क्या आप अपने नबी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? क्या आप अपने रसूल को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? बस यही पैगाम आपको देना है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के इश्क का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, एक दिन में 100 मर्तबा नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, जो मां का दिल एक मर्तबा दुखाए, मरते वक्त तो उसको कलेमा नसीब नहीं होता। जो रसूलुल्लाह का दिल एक दिन में 100 मर्तबा दुखाए, बताओ उसकी कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। जब तुम दाढ़ी मुंडाकर अपने चेहरे से दाढ़ी निकालकर कटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? फजर की नमाज में जब तुम सोते पड़े रहते होंगे, उस वक्त तो रसूलुल्लाह का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? अल्लाह अकबर। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर उठाते होंगे तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं
نہیں دکھتا ہوگا؟ جب حضور سے عشق ہی کیا ہے تو حضور کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو گناہوں کو کیوں قربان نہیں کر دیتے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اب جیئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، جو آپ کو پسند ہے وہی کریں گے، جو ناپسند ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ آپ نے سنا ہے ایک جوان ایسا بھی ہے، ایک جوان، سنیے عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف زبان سے بات کرتے، نعت سن کر جھومنا یہ عشق کی علامت تو ہے مگر حقیقت عشق نہیں۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آؤ اپنے آقا سے عشق کر لیں۔ کیا بات؟ اگر تم حضور سے عشق کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دنیا میں کبھی تم رسوا نہیں ہو سکتے، دنیا میں تم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے۔ عاشق رسول بن جاؤ، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ تم روزی روٹی کے لیے ترستے ہو، عاشق رسول بن جاؤ، جس کو دیکھ لو گے اللہ اس کے گھر میں برکتوں کا دریا جاری کر دے گا۔ عاشق بن کر تو دیکھو، لیکن یاد رکھنا زبانی عاشق نہیں، صرف زبان کے دعوے دار نہیں۔ مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے، مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں زیادہ دیر اس لیے کہ 12 بجے کے بعد تقریر کرنے کی میرا موڈ نہیں ہوتا، سچی بات تو یہ ہے۔ میں نے مولانا صادق صاحب سے بھی کہا کہ بھائی جس کو بھی تاریخ دے اس کو کہیں کہ میری تقریر 11 بجے کروائیں، لیکن بہرحال آپ بیٹھے ہیں تو میں نے کل بھی مختصری تقریر کی، 12 کے بعد مائک ملا، آج بھی مختصر بولتا ہوں۔ لیکن ایک بات دیکھیے، ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتا ہوں، چلو بات کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ اگر کبھی سننا ہو تو مجھے 11 بجے مائک دینا، پھر میں لمبی تقریر کروں گا، لیکن آج میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، ذرا دھیان دینا۔ ایک ہی بات میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں عاشق زبان کے دعوے سے نہیں ہوتا، لڈو لڈو کہنے سے کبھی منہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو، آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں میرے بھائی، عشق کی ڈگری وہ ہے اللہ اکبر، جس کے برابر، جس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ، مگر عاشق آدمی بنتا کیسے ہے؟ لڈو لڈو کہنے سے وہ میٹھا نہیں ہوتا۔ عشق کر کے تو دیکھو، جو عاشق ہوتا ہے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ راتوں کو درود پڑھتے ہوئے گزارتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں کبھی سوتا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں، یہ میرے علماء کرام میرے پیچھے بیٹھے ہوئے پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ میری تائید کریں گے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے، عشق رسول کے نام پہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے۔ حدیث سنیے، صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، جو مجھ محمد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ رات بھر سوتا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اعلان سنو، آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات کبھی نہیں سوئے گا۔ عاشق رسول جب رات کو نہیں سوتا، وہ راتوں کو حضور کے لیے جگتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی استغفار کرتا ہے، کبھی راتوں کو آنسو بہاتا ہے۔ تو بتاؤ عاشق رسول فجر کی نماز میں کیسے سو سکتا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں توجہ کے ساتھ سنو، عاشق انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب تک اپنے محبوب کی بات نہ مانے، جب تک
अपने नबी की बात में ना माने, उस वक्त तक आप आशिक रसूल नहीं हो सकते। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। कैसे आशिक थे वो लोग, अल्लाह अकबर। एक जवान है, अल्लाह अल्लाह, एक जवान है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल की मोहब्बत नसीब हो गई, आका की मोहब्बत नसीब हो गई। अब ध्यान से सुनना, वो जवान अल्लाह अल्लाह इब्तिदा इस्लाम ही में उसको ईमान की दौलत नसीब हो गई, मगर कैसा खुश नसीब है वो जवान, अल्लाह अकबर, कि उसने बिन देखे हुजूर से इश्क किया है। हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर को सुना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मेरे आका है ही ऐसे, जो देख ले उनसे इश्क करने लगे, जो उनको सुन ले इश्क करने लगे। कैसे हैं मेरे आका, अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जो एक मर्तबा देख लेता था हुजूर ही का होकर रह जाता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे, अगर दीवारों के सामने खड़े होकर हुजूर मुस्कुरा देते तो दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आया करता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हुजूर का साया कभी जमीन पे पड़ता नहीं था। अल्लाह अकबर। एक जवान है, इश्क मोहब्बत का इमाम कह लीजिए, उनकी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो गई, उनको भी ईमान की दौलत नसीब हो गई। बार बार कोशिशें की रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने की, बार बार कोशिश की हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने की, लेकिन माँ के बुढ़ापे ने उनको नबी की बारगाह में जाने नहीं दिया। जानते हैं वो कौन आशिक रसूल है? उसी आशिक रसूल को सैयदुना उवैस करनी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। कैसा है ये आशिक रसूल, नबी की जियारत के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए जियारत के लिए कि माँ की खिदमत कौन करेगा, अगर मैं चला गया तो माँ की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हजरत उवैस करनी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ उनकी जिंदगी लिखी है। कहते हैं उवैस करनी का हाल ये था, अल्लाह अकबर, रोजाना सुबह को माँ के पास आते और आकर माँ के कदमों में बैठ जाते और माँ से कहते, माँ अगर इजाजत दो तो मैं नबी की जियारत के लिए जाऊं। तो उनकी माँ कहती, नहीं बेटा नहीं जाना। जरा ध्यान से सुनना, देखो आशिक की पहचान क्या है, आशिक की जिंदगी क्या है, आशिक का तरीका क्या है। माँ कहती, बेटा नहीं जाना बेटा, इसलिए कि वहां तो बड़े बड़े अक्लमंद गए, उन्हीं के होकर रह गए, तुम तो पहले से दीवाने हो, अगर तुम जाओगे तो तुम कभी वापस नहीं आओगे, और वहां तो हजारों मौजूद हैं और मेरी खिदमत के लिए तुम अकेले हो, अगर तुम चले जाओगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा, नाबीना माँ की खिदमत कौन करेगा, बूढ़ी माँ की खिदमत कौन करेगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे जवानों जरा गौर करो, नबी का दीदार एक तरफ है और माँ की खिदमत एक तरफ है। माँ की खिदमत की खातिर उवैस नबी के दीदार के लिए नहीं जा रहे हैं। और आजकल के आशिक रसूल लड़कों का क्या हाल है, अगर माँ कह दे तेरी पसंद की शादी मत कर तो वो माँ को गालियां देते हैं, बाप से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो इश्क मुस्तफा का रास्ता नहीं है, वो ज़बानी दावों का रास्ता है। अरे सच्ची आशिक को देखो, हुजूर के दीदार के लिए माँ के मना करने पर रुक गए। अल्लाह अकबर। और देख जियारत के लिए नहीं गए। और उवैस करनी का हाल क्या था, जितना कमाते थे सब माँ पे खर्च करते थे, जितना कमाते थे। अल्लाह अल्लाह। आज के इश्क रसूल का दावा करने वाले छोकरे माँ बाप को तरसाते हैं और जलसों में नोट उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। जलसों में नोट उड़ाएंगे, उर्सों में नोट उड़ाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसे में नजर देने के लिए और उर्सों में नजर देने के लिए, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप को दवा के लिए तरसा कर नात खानों पर, शायरों पर, मुकर्रिरों पे, पीरों पे पैसे लुटाने वालों, क़यामत के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि बूढ़े माँ बाप को तरसाते थे और जलसों में नोटे उड़ाते थे। यही तुम्हारा इश्क रसूल था, यही तुम्हारी मोहब्बत रसूल थी। सीखो इश्क रसूल करना। हजरत उवैस करनी ऊंट चराते थे, ऊंट चराना आपका पेशा था, और उससे जितनी रकम मिलती शाम को सब मां के कदमों में रख देते, सब मां के कदमों में रख देते। और आप क्या खाते?
गुटलियां खजूर की चुनते, उसको धुलते और धुल कर उसको कूटते और कूट करके उसको पानी में डाल के पी लेते। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें, हम और आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को खुश करने पे नबी खुश होते हैं, माँ बाप को खुश करने पर खुदा खुश होता है। अल्लाह अकबर, लाखों लाख के जलसे करेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की दवाखाने का बिल देने की बात आए तो दवाखाने में भाई भाई आपस में लड़ते हैं, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। ये हालात हैं, ऐसा मत कीजिए। अल्लाह रसूल की खुशी माँ बाप की खुशी में है, और अगर माँ बाप को दुखी किया, माँ बाप को नाराज किया, हुजूर तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते, आका कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते। सैयदुना उवैस करनी रोजाना अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ हुजूर की जियारत को जी चाहता है, माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। एक दिन माँ ने सोचा ये मेरा बेटा उवैस दीवाना है, दीवाना, रोजाना आता है और आ करके कहता है कि हुजूर की जियारत के लिए जाना है, मैं रोज रोज मना करती हूँ, आखिर मैं कब तक दिल पे पत्थर रख करके मना करूं। आज मैं उनको इजाजत दे ही देती हूँ, लेकिन आज ऐसी इजाजत दूंगी कि इसके बाद कभी ये इजाजत मांगेंगे नहीं, कभी इजाजत मांगना भूल जाएंगे। उवैस करनी एक दिन सुबह को आए, माँ के कदम पकड़ कर बैठ गए और माँ से कहा, माँ अगर इजाजत दो तो मैं रसूलुल्लाह की जियारत के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, बिल्कुल जाओ, जरूर जाओ, इतना सुनना था। लेकिन माँ ने कहा एक बात कान खोल कर सुन लो उवैस, जाना जरूर जाना, लेकिन एक बात याद रखना, 8 पहर के अंदर अंदर तुम्हें वापस आना है। 8 पहर का मतलब क्या? आजकल के हिसाब से मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला 8 पहर का मतलब होता है कमोबेश 24 घंटे। यानी उवैस तुम मदीने जा तो रहे हो, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आना। अगर तुम 24 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुमको कयामत में माफ नहीं करूंगी, तुमको 24 घंटे में वापस आना ही पड़ेगा। अब कहां यमन, कहां मदीने मुनव्वरा। आज फ्लाइट से सफर करो तो तकरीबन यमन से मदीने मुनव्वरा के 2.5 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में 2.5 घंटे लगते हैं। और माँ क्या कह रही है, 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है, और माँ कह रही है कि 24 घंटे में वापस आना। लेकिन कैसा आशिक था वो, अल्लाह अकबर, न आओ देखा न ताओ देखा, फौरी तौर पर जल्दी से माँ के कदम चूम के निकल गए मदीने मुनव्वरा की तरफ। देखो ये इश्क की बरकत है, सच्चे इश्क की बरकत। काश कि मेरी कौम इश्क रसूल सीख ले, मोहब्बत रसूल सीख ले। 2 जुमलों में इश्क रसूल ये है कि जो हुजूर की बातों पर अमल करना शुरू कर दे, हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया वो करे, और जिससे रुकने का हुक्म दिया रुक जाए, वो सच्चा आशिक रसूल है। जो ऐसा आशिक बन जाता है फिर अल्लाह उसको क्या मकाम अता करता है। उवैस करनी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं। जब माँ का ख्याल आता है तो उवैस करनी दौड़ने लगते हैं। जब हुजूर का ख्याल आता है तो सोचते होंगे उवैस नबी की गली में जा रहे हो और ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, ऐसे दौड़ते दौड़ते नबी की गली में नहीं जाते। अल्लाह अकबर, हुजूर का ख्याल आता है तो दौड़ना बंद कर देते हैं, माँ का ख्याल आता है दौड़ना शुरू करते हैं। फिर आखिर इश्क के इस मस्ताने पर खुदा का ये करम हुआ, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और उवैस को मदीने मुनव्वरा से करीब कर दे। क्या शान हुई, जमीन सिमट गई, जमीन सिमट गई, और हजरत उवैस करनी सूरज चाश्त की तरफ आने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। अब जरा ध्यान देना, महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं वो मंजर देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि क्या कैफियत हो रही होगी उस आशिक सादिक की। अरे 14वीं सदी का आशिक रसूल जब
मदीने मुनव्वरा जाता है तो जैसे जैसे शहर मदीना करीब आता है उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती है, दिल का हाल ज़ेरो ज़बर होने लगता है, वो सारे गमों को भूल जाता है। अल्लाह आपको भी जल्द मदीने मुनव्वरा दिखाए।